के समरी कौन करेंगे? कुंटू देवाशीष देवाशीष देवाशीष। अच्छा सर, ठीक, तो शुरू करिए। शांति मंत्र। हाँ, ओम सहना भवतु सहनावतु सहनौ सहनौ भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। महाराज जी प्रणाम। शुरू करें? यस। अच्छा। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननी शरदं देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री नमस्ते यतिराजाय विवेकानंद सुरय सच्चित् सुख सच्चित सुखद स्वरूपाय स्वरूपाय स्वामिने स्वामिने तापहारिणे। तापहारिणे। विवेकानंद जी का संग में स्टार्ट कर रहे हैं। विवेकानंद जी का प्रणाम मंत्र नहीं बोलोगे? ठीक है। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। समझ नहीं है। साष्टांग pranam to revered Swami Brahmashanji Maharaj. My humble pranam to all the devotees. Today's topic is conversations and dialogues between Swamiji and his disciple Sharat Chandra Chakraborty at Bagbazar, Calcutta, 1897. Swamiji has set his foot in Calcutta after his first return from the West in 1897. Swami Turiyanandaji had introduced Sharat Chandra Chakraborty to Swamiji, and Swamiji says he already heard about the disciple who wrote a hymn on Sri Ramakrishna. Disciple was well versed in Sanskrit and an orthodox Brahmin and also a Vedantin. I have broken up this entire article into 12 bullet points. The first point is Swamiji's impressions on Americans and British people. Swamiji said, nowhere in the world is to be found another nation like the Americans, so generous, broad-minded, hospitable, and so sincerely eager to accept new ideas. Wherever work has been done in America has not been done through my power. The people of America accepted the ideas of Vedanta because they are so good-hearted. Referring to England, Swamiji said, there is no nation in the world so conservative as the English. They do not like so easily to accept any new idea, but if through perseverance they can be once made to understand any idea, they will never give it up by any means. Such firm determination you will not find in any other nations. Number two, future prospect of preaching religion in the West. Swamiji said, in our country, there is only this religion of Vedanta, a religion which gives equal rights to acquire spirituality to men of all creeds and all parts of religious practice. The civilized West will come to know what a wonderful degree of spirituality once developed in India and how that is still existing. By study of this religion, the Western nation will have increasing regard and sympathy for us. In this way, if we have their real sympathy and regard, we would learn from them the sciences bearing of our material life, thereby qualifying ourselves better for the struggle for existence. On the other hand, by learning the Vedanta from us, they will be enabled to secure their own spiritual welfare when there will grow a line of sympathy and regard between both the nations. By this give and take intercourse, they will do everything of their own accord. I believe that by this cultivation of religion and the wider diffusion of Vedanta, both this country and the West will gain enormously. I will lay down my life to carry out this belief practically. Karma theory. Swamiji was in anguish and grief when he heard a preacher belonging to the Society for the Protection of Cows. At that time,
there was a famine in central India, and Swamiji asked him to help famine-stricken people. The preacher expressed his opinion that the famine in central India, where lakhs of people died, is because of their karma. Swamiji was furious and controlled himself. Swamiji said, "This is a decisive proof that the country has gone to dogs, rack and ruin, and the karma theory of Hinduism has been abused. Those who are men and yet have no feelings in the heart for man are not to be counted as men." Consciousness. Swamiji says everything is conscious which rebels against nature. Their consciousness is manifested. Just try to kill a little ant, even it will once resist to save its life. When there is struggle, where there is rebellion, there is the sign of life. Their consciousness is manifested. This is true for men also. Arise, awake, sleep no more. Within each of you, there is the power to remove all wants and all miseries. Believe this, and that power will be manifested. God is the only dispenser of results. Swamiji says, he who speculates as to what awaits him in future accomplishes nothing whatsoever. What you have understood as true and good, just do that at once. What's the good of calculating what may or may not befall in future? Span of life is very short. Can anything be accomplished in it if you go on forecasting and computing results? God is the only dispenser of results. Leave it to him to do all that. Swamiji on Katha Upanishad. Swamiji said, among the Upanishads, one finds no other book as beautiful as this. He also told his disciple to try and bring into his life the faith, the courage, the determinations, and the renunciation of Nachiketa. When the disciple asked for Swamiji's blessings, he immediately said what Sri Ramakrishna had said once. The breeze of mercy is already blowing. Do you only hoist the sail all together? Can anybody trust realization upon another? One's destiny is in one's own hands. The Guru only makes this much understood. Through the power of seed itself, the tree grows. The air and water are only aids. Disciple asked, isn't there necessity of extraneous help? Swamiji, yes, there is. But you should know that if there is no substance within, no amount of outside help will avail anything. Yet, there comes a time for everyone to realize the self. For everyone is Brahman. The distinction of higher and lower is only in degree of manifestation of the Brahman, of that Brahman. In time, everyone will have perfect manifestation that is realized in one's self. Liberations and samadhi, all this consists in simply doing away with the obstacles up to the manifestations of Brahman. Otherwise, the self is always shining forth like the sun. The cloud of ignorance has only veiled it. Remove the cloud and the sun will manifest. Intense longing. Disciple says, when he reads or hears these words of the Shastras, the thought that the self has not been realized makes the heart very disconsolate, very unhappy, and unable to be comforted. Swamiji, this is what is called longing. This intense longing becomes Longing. Longing. Not Longing. longing. No, not Longing. 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 Acha. Byakulata. This is called longing. This intense longing, becoming mad after realizing God or getting the knowledge of the self, is the real spirituality, the irresistible madness which the gopis had for the Lord, Sri Krishna. Yeah, it is intense longing
this like that, which is necessary for the realization of the self. Even in the gopis' mind, there was a slight distinction of man and woman, but in real self-knowledge, there is not the slightest distinction of sex. Sri Krishna in the battlefield, salvation to humanity. Now is needed the worship of Sri Krishna, uttering forth the lion roar of the Gita, of Rama, his bow and arrow, of Mahavira, of Mother Kali. Then only the people grow strong by going to work with great energy and will. I have considered the matter most carefully and come to the consideration that of those who profess and talk of religion nowadays in the country, the majority are full of morbidity, having a disease or a symptom of disease, crack-brained, insane, idiotic, crazy, or fanatic. Without development of abundance of rajas, you have hopes neither in this world nor in the next. The whole is enveloped in intense tamas, and naturally, the result is servitude in this life and hell in the next. Hence, do I say, let people be made energetic and active in nature by the stimulation of rajas. Work, work, work. There is no other path of liberation but this. Swamiji on civilization. The more advanced a society or nation is in spirituality, the more is that society or nation civilized. The present day civilization of the West is multiplying day by day only the wants and distresses of men, consumerism. On the other hand, the ancient Indian civilization, by showing people the way to spiritual advancement, doubtlessly succeeded, if not by removing once for all, at least in lessening in a great measure the material needs of men. Corruption in religion. Only the knower of Brahman is the spiritual teacher of mankind. This is corroborated by all scriptures. It is only the self who have introduced into the somebody, अरे किसका आवाज आ रहा है? somebody is talking. Can you mute the mute? सतीश जी म्यूट कर दीजिए, सतीश जी म्यूट कर लीजिए. Only the spiritual teacher of mankind. This is corroborated by all scriptures and by reason too. It is only the selfish Brahmins who have introduced into this country the system of hereditary gurus, which is against the Vedas and against the Shastras. To remove all this corruption in religion, the Lord has incarnated himself on earth in the present age in person of Sri Ramakrishna. The universal teachings that he offered, if spread all over the world, will do good to humanity and the world. Brother disciple asked Swamiji, why did you not publicly preach Sri Ramakrishna as an avatar in the West? Swamiji, they make much flourish and fuss over their science and philosophy. Hence, unless you first knock to pieces their intellectual conceits through reasoning, scientific argument, and philosophy, you cannot build anything there. Those who find themselves off their moorings, that is, one's stability or insecurity, say after the death of near and dear ones, and through their utmost intellectual reasoning would approach me in a real spirit of truth-seeking. Them alone I would speak of Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna Pranamastu. Okay. So now we start with questions. भुवन मित्तल है, भुवन मित्तल सबसे पहले भुवन का क्वेश्चन था. जिसका क्वेश्चन पहले आता है मैं उसका पहले लेता हूं. भुवन मित्तल नहीं है?
नहीं है महाराज। Okay. Kundu, 1 मिनट महाराज। भुवन मित्र कहाँ चले गए? हाँ महाराज। बोलो। my yes महाराज। First question is page 459. Swamiji thought that Vedanta work will be more permanent in England than in America. Yes. Kundoji, unmute yourself. You have become- One second, this thing is giving some problem. Okay. So, considering the present growth of the centers in both the countries, do you think that the assessment came true? You see, I don't know. Here, our retired from just close by, Swami Dayatmananji has retired from England. He was there in England for many years, and he has come here. So I asked him the question. He was also not able to give a definite answer. Now things are, you see, in one after Swamiji is passing, it Yes, is Maharaj. almost 30, 20, 25 years. Now things have completely changed all over the world. Isn't it? Yes, Internet, by internet, everything is going everywhere. Everything Yes. a person can learn. Everything you are exposed to everything, physical things, scientific things, etc. So at that time, what Swamiji says, and present time, oh, the whole thing is completely changed. And I'm sure if Swamiji were there, he would not have given this type of a definite statement that they are superior people and they are superior people and all that, etc. Yes. Now, even in India, Swamiji is criticizing India very much. That we are so Yes. dull and all. Now, everywhere development. In modern science also, India is competing. Even the villagers have become very active. So now things have completely changed. And isliye, that's why this statement of Swamiji now has no relevance and it should not be taken in, rightly. At that Seriously. Okay. Isn't it? Okay. Maharaji, in the US, we have still seen an impact of Swamiji because there has been so much literature over the years coming from there. But in England, UK, we have not seen as much impact. And Swamiji rightly said, unless the preachers go there in large numbers, they will not, because they take more time to get hold of an idea and then they do it. So UK, we have seen that there has not been such an impact as much in USA, Maharaj. Would you say that? So, I don't know. I mean, we don't know. We are not the proper persons to assess it. What Yeah, you correct. say is probably true. That in UK there is less effect rather than USA. Yes. Right. USA so many centers, so many etc. are there, and in UK also there are some of 3 or 4 centers are there, but how active they are we don't know. Very difficult. to say. No, Swami Sarvashanand Ji is there in Barn and near London, that center. It's a big center with a big house. But what I heard from him is that I think Bhaskarananda or someone, he purchased the whole land and all. It's on solid foundation financially, and they do programs in Bharatiya Vidya Bhavan Hall, regular programs in London. Oh, that's all right. Very good. That's very localized. Very good. Very good. You see, nowadays things have changed. Old conceptions you cannot put. Okay. Yes. Yes, ma'am. Now, next question, Maharaj, page 464. Now, when the disciple asked whether the qualifications
of an aspirant as propounded in Vedanta is present in the Western disciples, Swamiji gave a cryptic answer that you see for yourself. Now, can you please explain how the qualities are reflected in their context? Now, see, these are sadhan chatushtay. You know that or not? Yes. Yes, Maharaj. विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, सदा, समाधान, ये षट संपत्ति और मुमुक्षा, Mokshat. मुक्त होने की इच्छा, विवेक, नित्य और अनित्य का विवेक, वैराग्य, ये काल में परकाल में अपने कर्मों का फल का भोग करना, ये सब जो है ये इनको कहते हैं षट संपत्ति। अब प्रश्न ये है, उसने पूछा है कि क्या अमेरिकन लोग षट संपत्ति थी क्या, ये प्रश्न है ना। अब यहाँ आप देखो रामकृष्ण मिशन के तो कितने सेंटर्स हैं अमेरिका में, हाँ बराबर। और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और हम जब ट्रेनिंग सेंटर में थे तो हमारे साथ में एक स्वामी जी थे, उनको क्या नाम, प्रहलाद महाराज, हम उनका वो अमेरिकन थे और प्रहलाद महाराज उनका इंडियन नाम दिया गया था। अब वो आत्मरूपानंद हो गए हैं और शायद ग्रेड्स में है या यूरोप में किसी इम्पोर्टेंट सेंटर के हेड हैं। तो वो तो बहुत अच्छे थे, हमारे साथ में बहुत बढ़िया जमता था उनका। तो वो कैसे कहोगे कि इनमें विवेक, वैराग्य, सब गुणों ये नहीं है? बिना ये हमारे यहाँ कृष्ण मिशन में तो आप 9 साल कैसे के होगा? बाद में आपको संन्यास दिया जाता है, तो 9 साल की ट्रेनिंग क्या कम होती है क्या? तो उसमें सब ये विवेक, वैराग्य, शम, समाधि और मुमुक्षा इत्यादि की ट्रेनिंग तो हो ही जाती है। तो इसलिए हम ये कैसे कहेंगे कि उनमें ये चीजें नहीं है? इतना वेदांत फैल रहा है तो लोग, फॉरेन के अमेरिकन लोग भी जो हैं इन वेदांत की बातों को समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं कि इसको साधना करके हमें जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम वेदांती हो सकेंगे। तो ये हम समझते हैं कि ये जो है ये चल रहा है, इसमें कोई बात नहीं। और हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा रामकृष्ण मिशन में तो फुल डिसिप्लिन, कोई अमेरिकन हो या जो भी हो, 9 साल तक उसको ट्रेनिंग, उसके बाद में संन्यास। तो संन्यास में फिर महामंत्र लिखता है वेदांत। और महाराज जी, अमेरिकन सेंटर्स में we have also seen very sincere volunteers. And they are very, much very more good. sincere. No, They are much more sincere. So can we say, can we say that they may not know the technical terminologies related to this idea of sadhan chatushtaya and all, but their mental makeup and attitude is towards detachment and dispassion and yearning for liberation? See, as a matter of fact, if they have some idea about Christian culture, Christian है ना by culture, तो जन्म से पढ़ से Christian और Christian religious Yes. ideas होंगे, तो उसमें जहाँ तक religious ideas हैं उसमें विवेक, वैराग्य, सेल्फ कंट्रोल इत्यादि तो होगा ही। So there is no difficulty. Actually, without it, very good Christian can very good become a very good Vedanti. Yes. Yes. Not difficult. Especially Catholics, Yes. Maharaj. Yes, Maharaj. Then last question, Maharaj, page 473. Swamiji said that a civilized society accepts the idea rather than being critical of trivial mistakes. Now, in another context, can we say that if we can wholeheartedly accept the ideas of Vedanta, the preliminary rituals need not be followed? Now, what is your question? No, Maharaj, question is that here Swami, सबका अपना अपना Yeah. स्थान है। क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी रिचुअल नीड नॉट बी फॉलोड, ये बोल रहे हैं ना? हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब वो सब एक बार आइडिया पकड़ लिया वेदांत का, सही में पकड़ लिया, तो ये तो ट्रिवियलिटीज बन जाता है कि उसमें मतलब लाइक रिचुअलिस्टिक, ऑल दिस रिचुअल जो बोलते हैं वही भी भक्ति साधना। ये तो वेदांत में तो हम रिचुअल छोड़ ही देते हैं। तो
संन्यास जब होता है तो रिचुअल सब छोड़ दिया जाता हाँ है, हाँ फॉर्मली छोड़ दिया जाता है। अच्छा लेकिन विवेक, हाँ। वैराग्य, शम दम उपरति, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा, मुमुक्षा, ये सब तो छोड़, साधन ठीक चतुष्टय बात। है, ये इसका थोड़ा त्याग नहीं किया जाता। अरे ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी विवेक वैराग्य बना के रहता है, शम दम रहेगा, उसमें सेल्फ कंट्रोल रहेगा, ये चीजें बेसिक रहेंगी, लेकिन वो क्रियाकांड नहीं करेगा, मूर्ति की पूजा नहीं करेगा, तो न्यास वगैरह भारत इत्यादि ये जो प्रिलिमिनरी चीजें हैं ना, ये जो रिचुअल्स हैं, प्रिलिमिनरी रिचुअल्स, ये त्याग हो जाएंगे। हुआ तुम्हारा क्वेश्चन? महाराज फॉर द ठीक मठ महाराज। एंड मिशन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट ना। मठ एंड मिशन के जो चलता है, तो रिलीजन, ये छोटे छोटे ये भी पूजा काम, ये एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ये रामकृष्ण मिशन, ये ना वो किसके लिए है? वो बहुत सारे लोग, नहीं, सारा दुनिया, पूरे तो मिशन के लिए। हाँ हाउस होल्डर डिवोटीज तो है ना, उनकी बात है ये तो। हाँ मैं नहीं ये महाराज, पर्सनल बात कर रहा हूँ। प्रभु महाराज कहते थे कि मतलब पूजा ठीक से नहीं चलने से समथिंग बैड विल हैपन टू द हाँ, फुल मिशन। क्योंकि पूजा को त्याग करके सन्यास के अधिकारी बहुत कम है। कम है। हाँ 90% लोगों के लिए पूजा की आवश्यकता है। हाँ, जो तो साधु, एवरीथिंग हैज इज ओन जो इम्पोर्टेंस। जो भक्त हैं, जो साधु बन रहे हैं, उनके लिए चीजें इम्पोर्टेंट है। ठीक और है। जब वो बढ़ गए, आगे हो जाएगा, उसके बाद में शम दम उपरति, ये सद्गुण रहेंगे, लेकिन रिचुअल की आवश्यकता नहीं रहेगी, छूट जाएगी अपना। हाँ हाँ, अरे खुद ही नहीं, ठाकुर ही तो रिचुअल नहीं कर पाते थे ना, ठीक महाराज। धीरे धीरे अपने आप छूट जब जाएगा। पूजा करने बैठते थे सब उल्टा पुल्टा हो जाता था, ठाकुर खुद ही बोलते थे, ये वो तो सुना। अपने आप हो जाएगा। Mission has to set लेकिन an example. in spite of that, Mission sets the example. 90% people need it. पर महाराज जी, हम्म, ये ब्रह्मचारी को सबसे पहले ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि रिचुअल्स किस प्रकार से किए जाए। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ फिर थोड़ा शुरू में दिया जाता है, वो 9 साल की ट्रेनिंग में सब हो जाता है, उसके बाद खत्म। अच्छा। Maharaj, mission लेकिन has to set an सुनो example सुनो, to the society. अरे भाई गृहस्थ लोग भी तो हैं, Exactly, Maharaj. अधिकांश लोगों तो गृहस्थ है ना, हाँ हाँ हाँ, तो उनके लिए है तो नहीं, जरूरत है, सबकी जरूरत है। उनके लिए जरूरत है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ? महाराज जी, इस पे एक सवाल ये है कि आश्रम में सुबह शाम जो आरती या रिचुअल्स किए जाते हैं अलग अलग समय पे, तिथि पे, ये सब गृहस्थों को समझाने के लिए किए जाते हैं। इट नहीं नहीं, मीन्स मंदिर नहीं में, नहीं नहीं मंदिर नहीं में नहीं। मूर्ति बिठाई ना, मंदिर में मूर्ति बिठाई है, जी मूर्ति श्राइन बनाई है ना, हाँ ठाकुर की मूर्ति है, फोटो है, हाँ हाँ है। तो फिर ठाकुर की पूजा करनी पड़ेगी, अच्छा, राइट, और जैसा ठाकुर की पूजा का विधान है वैसा करना पड़ेगा। ओके। तो वो तो परंतु आश्रम के लिए, ये तो आश्रम के लिए है। ओके, इट इज फॉर आश्रम, नॉट फॉर द हाँ? सन्यासीज हु जस्ट क्रॉस लाइन। इंडिविजुअल के लिए नहीं है। ओके, राइट महाराज जी। अच्छा, तो महाराज जी एक मिनट, ये कि जो सन्यासी है वो पूजा के समय मंदिर में सुबह या शाम ना रहे तो भी देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। नो प्रॉब्लम। राइट, ओके जी। लेकिन हम आरती के समय जाते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, वो बात अलग है, पर इट्स नॉट कंपल्सन और समथिंग नो 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 नो, जरूरी नहीं है जी। सच पूछा जाए तो एक जैसा स्वामी ठाकुर के जीवन में हुआ, अगर हाँ ठीक ठीक आप ध्यान जब तपस्या करोगे तो जी, बाह्य पूजा की जगह आंतरिक पूजा चालू हो जाती है, हाँ मन हाँ, में भगवान का चिंतन चालू हो जाता है, तो बाहरी पूजा की क्या आवश्यकता है? बराबर जी महाराज। वो ठीक महाराज। अपने आप छूट जाता है। जी लेकिन सोशल ठीक। दृष्टि से जी, जब मंदिर बनाया है, मूर्ति प्रतिष्ठा की है, एक श्राइन बनी हुई है, तो पूजा होनी चाहिए। ओके, राइट महाराज जी। जी, भुवन मैडम ज्वाइन कर ली हैं। हाँ कर लिया। अच्छा ठीक, ठीक, प्रणाम महाराज। कुंडू हाँ हो गया महाराज, तुम्हारा? यस महाराज, प्रणाम महाराज। चलो भुवन, म्यूट है, अनम्यूट करना है।
संजय उनको म्यूट करो, अनम्यूट करो। भुवन जी अनम्यूट कर लीजिए। महाराज जी इज स्पेशली वेटिंग फॉर योर टर्न। नहीं, वो कहीं बिजी हो गए हैं। नहीं हो तो सुनो, चलो सुधीर मजुमदार। हाँ चलो। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हम्म, जस्ट 1 सेकंड। महाराज जी, पहला सवाल है, man is the first to be saved, says Swamiji to the individual who was from an organization for the protection of cows. Today also we have these Gau Rakshaks and Society for Prevention of Cruelty to Animals भी एक संस्था है, SPCA। जी, तो मेरा सवाल है, are they less important? Because some people I have met are more animal lovers compared to being human being lovers. So this is a sanskar, I feel. So isn't that a देखो, good sanskar? देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है, जी मानव की सेवा, उसके बाद गायों की सेवा, उसके बाद कुत्ते बिल्ली की सेवा, ओके उसके बाद में चींटी की भी सेवा, चींटी को भी खिलाते हैं ना। जी, हाँ, जी जी बिल्कुल। जी अब चींटी को खिला रहे हैं, जी लेकिन भूखा आदमी हमारे घर के सामने पड़ा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, वो मरे साला। हाँ, वो तो मैं गर्म समझ के गया महाराज। कारण मरता है। हाँ, ये ये होगा, ये आइडिया मैं होगा। समझ गया महाराज। जी जी, ये जो डाइकोटोमी और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये समाज में फैली हुई है, जी जी और स्वामी जी इज पॉइंटिंग आउट टू दैट। उस समय वो फेमिन हुआ था, लोग मर रहे थे, हाँ हाँ, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि गौ रक्षा कीजिए। गौरक्षक होना चाहिए, सभी होना चाहिए। अरे अब तो क्या हुआ है, अब तो व्हाइट रिवॉल्यूशन आ गया भारत में। जी तो कोई देखिए गौयों की कितनी अच्छी कंडीशन हुई है। जी, तो ये देखो, थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज। थिंग्स हैव चेंज, यस। अब वो फेमिन भी नहीं हो रहे हैं, फेमिन के बदले ये सब हो गया है, गवर्नमेंट देख रही है, हाँ हाँ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कहीं फेमिन में 2 आदमी मर जाए, कुछ भी हो जाए, तो लोकसभा के अंदर क्वेश्चन करना पड़ जाएगा, उनको जवाब देना पड़ जाएगा। जी तो जी, थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज। थिंग्स हैव चेंज कंप्लीटली। कंसेप्ट को, अब जैसे मैंने अभी कहा है कि लेवल को सबसे अच्छा है कि भाई एक चींटी को भी कुछ दिया जाए, हाँ हाँ और कोई आदमी भूखा नहीं रहे। हाँ, जी। दैट इज महाराज व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है? ये भी व्हाइट वो रिवॉल्यूशन, यानी वो दूध 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 दूध। व्हाइट अच्छा, यानी मिल्क मिल्क। हाँ हाँ हाँ। तो वो इंदिरा गांधी ने शायद किया था। जी, उन्होंने कहा कि गायों को बाहर फॉरेन से अच्छे अच्छे जर्सी काऊ वगैरह मंगाई, सब उनको डेवलपमेंट किया, और सारे भारत में दूध की मात्रा चौगुनी 10 गुनी हो गई। दूध क्रांति। ये दैट वाज व्हाइट रिवॉल्यूशन। अच्छा, और पहले हाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर को रिवॉल्यूट किया था। हाँ या, हाँ। तो ये यानी भारत की इतनी बुरी हालत थी उस समय, ये इंदिरा गांधी और दो वॉट एवर इट इज जो भी किया है, रिवोल्यूशनाइज करके इकोनॉमिक कंडीशन भारत की इंप्रूव की। जी जी स्वामी जी जो बात कर रहे हैं, उस समय की बात करना चाहिए कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं, और आप गाय की बात कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, ये समय बदल समय गई। की बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो तो यहाँ तो क्या, तुम एक गाय की क्या बात कर रहे हो, हम तो व्हाइट रिवोल्यूशन करते हैं, सैकड़ों गांवों का हम गायों का कल्याण कर रहे हैं। जी दैट इज जी जी, तो महाराज, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट हैज टू बी सीन। राइट। बिल्कुल ठीक है महाराज। On page 466, Maharaji, next question. Swamiji is exhorting the disciple to learn the truths from them, matlab himself and his disciples, and realize them, and then broadcast in cities, villages, etc. तो वो शरद चंद्र जी को बोल रहे हैं कि हमसे सीखो the truths, then realize them, and then broadcast them. So similarly, we are also learning these truths from you all, Maharaji. So are we also qualified to do the same? Should we also? यस, आप भी थोड़ा सा, अगर आप तो सीख जाओगे, उसके बाद सीख के आप भी उसको दो लोगों को।
You in the talk बातचीत करने में आप you are fully convinced and वो है, you can discuss, you convey the message to others also. Transmit the ideas, yes महाराज. That can be done. हाँ, तो मतलब हम लोग अधिकारी हैं कि नहीं, ये देखने के लिए मैं सवाल कर रहा था. Now it all depends upon, जैसा आपको लगता है कि अगर हम कुछ कह सकते हैं, जी अरे जी भाई कभी कभी बुलाते हैं, कभी जी. मीटिंग्स हो जाती हैं, लेक्चर्स में अगर आपको बुलाया गया है लेक्चर देने के लिए तो चले जाइए. जी जी जी. ठीक है महाराज. नेक्स्ट पेज महाराज जी, ऑन पेज 467 नीचे के पार्ट में है. स्वामी जी टेल्स द डिसाइपल रिगार्डिंग द क्वालिटीज ऑफ नचिकेता, नेमली फेथ, करेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड रिनंसिएशन. तो नचिकेता के संबंध में कुछ इलैबोरेट करेंगे कि वो क्या. फेथ तो आपने कई दफे बताया, नचिकेता के फेथ का उन्होंने बहुत बोला है. एंड अबाउट अदर्स, करेज, डिस्क्रिमिनेशन, रिनंसिएशन के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे. नहीं, ये बड़ा मुश्किल होगा इसको करना हो, एक वैल्यू को करना पड़ेगा. यानी प्रश्न ये है, ये याद रखो, 4 वैल्यूज जो है वो मैं याद रखो. वैल्यूज के लिए नहीं बोल रहा महाराज, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया इन कंसर्न विद नचिकेता, कि उसमें फेथ का तो हमने सुन लिया था, बट अबाउट हिज करेज एंड ऑल दीस थिंग्स जो कह रहे हैं, तो ही मस्ट बी स्पेसिफिकली सेइंग फॉर नचिकेता ना, वो मैं कह रहा नहीं, that is, वो एक आप लोग पढ़ लेना उसको कुछ कर. हूँ. अच्छा. वो एक कोई, it is not a question, it is you want me to explain or elaborate, that is. नहीं, ज्यादा इलैबोरेट भी नहीं महाराज, जस्ट पूछ रहा था. ठीक है, फिर भी हम पढ़ लेंगे. अब ऐसा है ना कि इंडिविजुअल जैसे करेज है, तो करेज सन्यासी का करेज एक प्रकार का होता है, जी और गृहस्थ का करेज एक प्रकार का होता है. जी. There is a difference. राइट. You know, we have हम लोग we have a different type of courage is there in us. और फिर सन्यासी का भी रिनंसिएशन एक प्रकार का होता है, और हाँ, हाउस होल्डर का भी तो एक गृहस्थ का एक प्रकार का होता है. जी जी जी. तो ये जो है, ये सबके इंडिविजुअल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीजें होती हैं, लेना इसलिए पड़ेगा. इनको interpret करना मुश्किल है. ओके ओके. अगला सवाल महाराज महाराज. मैं बोलूं, बोलो. नचिकेता का पहला करेज था अपने फादर को ही बोलने का कि वो क्या खराब काम कर रहे हैं, पहला करेज. दूसरा करेज था कि वो यम के पास जाने की जो उसकी शक्ति थी, मतलब करेज, साहस था वो. फिर यम के यहाँ जाकर 3 दिन वो भूखे वैसे ही प्यासे बैठे थे, एंट्री अंदर घर में नहीं गए, वो तीसरा करेज था. और फिर बाद में उनको जो प्रलोभन दिया गया, इतनी जगह, इतना सब धन वन सब उसने ठुकरा दिया, उसको लास्ट में वो आत्मविद्या ही चाहिए था. ये करेज है उसका. अरे वाह हाँ, वाह, थैंक यू वेरी ये मच. प्रलोभन, ये Very good. प्रलोभन जो सब दिया, प्रलोभन ठुकरा दिया. हाँ, दैट Yes, वो थैंक डिस्क्रिमिनेशन. यू वेरी मच, थैंक यू Very वेरी good. मच. बहुत बढ़िया. हाँ, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. प्रलोभन जो था वो डिस्क्रिमिनेशन था, ही न्यू व्हाट ही वांटेड, सो उसने हाँ, सबको नहीं, ठुकरा दिया. प्रलोभन पहले ठुकरा दिया, सब हाँ. चीज उसने, उसको ना लेडीज चाहिए था, ना कुछ रथ चाहिए था, ना धन, कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ आत्मविद्या. ना अमृत Very बात. चलो. Next question, Maharaj, page 469. While explaining about gopis, he said even in the gopis' mind, there was a slight distinction of man and woman. Does he say this because though the Madhura Bhava, क्योंकि गोपी के भाव को मधुरा भाव से इक्वेट किया जाता है, though the Madhura Bhava is said to be the highest, yet even in that bhava there is some distinction. Man and woman का एक distinction बना रहता है. Is that why he is saying that? नहीं, वो तो ठीक है, ये तो है ही, अदरवाइज तो होगा नहीं. मधुर भाव में है, स्त्री पुरुष नहीं होगा तो मधुर भाव हो ही नहीं सकता. हाँ हाँ. मधुर भाव में भगवान को अपना पति मानना और स्वयं को उसकी स्त्री मानना, इस भाव से भगवान को प्रेम करना, तो उसमें ये भेद जो है, सेक्स भेद तो होगा ही. और आइडिया इसी में इन गोपियों में भी हाईएस्ट स्टेज तब थी जब उनको ये भाव चला गया कि मैं स्त्री हूँ, और वो अपने आप को कृष्ण समझने लग गई. हाँ, ये तो हुआ था. हाँ, अल्टीमेटली तो वही होता है. बहुत सुंदर. तो हुआ था, मधुर भाव में है थोड़ा सा स्लाइट आइडिया ऑफ मैन वुमन देह चलता है, भाव. लेकिन हाईएस्ट लेवल के अंदर तब हो गए, वो खुद ही अपने आप वो को भी. कृष्ण समझने लग गई. तो वर्णन आया है भागवत में पूरा, हाँ हाँ, वो भी चला और जाता है. कृष्ण को अपने को ही कृष्ण समझने लगे. जी जी. ठीक है महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जयदेव.
as mentioned in the same page about poet Jayadev, was there no Sanskrit poet after Jayadev from the 12th century? Jayadev तो 12th century का poet था, which means पिछले 800 साल में कोई संस्कृत नहीं हुआ। लिटरेचर का पोएट ही नहीं था हमारा। नहीं, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, I can't. अरे बहुत पोएट हुए। बिकॉज आपने संस्कृत पढ़ा हुआ है ना काफी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हम लोग तो कुछ किया नहीं, हमारा तो संस्कृत थोड़ा सा, यानी वो शास्त्र पढ़ने के लिए संस्कृत होती थी, उसके अधिक तो था नहीं। अच्छा, ठीक है महाराज, अगला सवाल पे चला जाता हूँ मैं। 475 ऊपर के हिस्से में स्वामी जी स्पीकिंग ऑफ डिवोशन टू गॉड which Hanuman represents. He later goes on to say, it is in this way that transmutation of species takes place. इसका क्या अर्थ हुआ हमारा? अब ये तो हनुमान की तरह चिंतन करते करते मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य की तरह विचार करते करते हनुमान जो है वो मानव बन जाएगा। अब ये किस दृष्टि से स्वामी जी ने कहा है, बड़े संभव। हाँ, आई कैन टेल यू। महाराज जी ये हाँ। भगवान श्री रामकृष्ण जब हनुमान का भाव में साधन करते करते उनका एक टेल बोन भी, एक थोड़ा सा पूंछ भी निकल गया था। तो मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो बंदर बन गया, ये हुआ ना, उल्टा हुआ है। कोई भी भाव में रहेगा तो वो भाई का प्रभाव आ जाता है शरीर का। अब ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ स्पीशीज, ये इंडिविजुअली होना एक चीज होती है। ठाकुर का, हनुमान का सोचते सोचते ठाकुर में परिवर्तन हुआ, इंडिविजुअली होना एक है, लेकिन ट्रांसम्यूटेशन ऑफ स्पीशीज, एक जाति दूसरी जाति हो जाए, ये कैसे होगा? ये तो आपको लाखों वर्षों का जो इवोल्यूशन की बात है। अमीबा जो है वो धीरे धीरे होते होते बदलते 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 वो जानवर बना, जानवर से फिर लाखों वर्षों में वो मनुष्य बना, बंदर बना, और लाखों वर्षों के बाद मनुष्य बना। ये कैसे होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल। जी जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर भाव पैदा हो जाता है, नहीं, प्रश्न ये स्पीशीज चेंज करने की बात हो रही है, भाव की बात नहीं होती। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। हाँ, ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पेज में है, सेम पैराग्राफ टुवर्ड्स द एंड, quoting Sri Ramakrishna, Swamiji says he also used to say, मतलब Sri Ramakrishna also used to say that his body would not have endured had he not held himself on this play of spiritual sentiment. Does it mean that this spiritual play, instead of being destructive, preserved his body, and it therefore dispels the popular notion कि तपस्या और स्पिरिचुअलिटी ब्रेक्स डाउन द बॉडी? ये देखो, ये जो पॉपुलर नोशन तो है, तपस्या यदि आप कठोर तपस्या करोगे, हाँ, तो शरीर तो टूटेगा ही। ये तो कितने लोग जो हैं वो ज्यादा दिन नहीं, 50-70 साल की उम्र होगी, वो तो बेचारे 40 साल की उम्र में मर जाते हैं तपस्या करते करते। ये बात तो डेफिनेट है। यहाँ पर ठाकुर क्या करते हैं, इमोशन की बात करते हैं। अच्छा। और वहां पे क्या थे, बांग्लाय जो अच्छे, बहुत अच्छा जो कहा, बांग्लाय बुझते बारे की निये थाकबो। अच्छा, बांग्लाय बोले ना, की निये थाकबो। हाँ, अगर कुछ भाव नहीं होगा, ठाकुर के प्रति बालक भाव, ठाकुर के प्रति कोई भाव, उस भाव से अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो की निये थाकबे। So that emotion sustains, that is the point. Oh, that's the emotion. That is the idea। यहाँ पे मुझे ऐसा, जी मैं समझ गया महाराज। That is the emotion, that is the play of sentiment. That is why स्वामी जी ने कहा सस्टेन करना की नहीं था, सब इमोशन विल बी देयर विद सस्टेन। हाँ, तो अगर वो भी नहीं रहा तो शरीर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। Exactly. हाँ। Last question महाराज, page 476. Swamiji says it is only the selfish Brahmins who have introduced into this country the system of hereditary gurus. हम लोग सुनते हैं ना कुल गुरु, तो which is against the Vedas and against the Shastras. ये वो कह रहे हैं कि how is वो कैसे हो? Why does he say that महाराज? Against Vedas and Shastras, कुल गुरु अभी ना ऐसा कुल गुरु बनाएगा तो उसमें कुल गुरु के तो
पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, कुछ भी नहीं जानता होगा, तो वो कैसे से गुरु हो सकेगा? यस हाँ, वो गुरु के तो अधिकारी है ना, गुरु में यही चीज सद्गुण होने चाहिए ना, तब गुरु होता है। मतलब तो अधिकारी भी वो नहीं गुरु है। है ना, तो वो तो बड़ी भयानक चीज। हाँ हाँ, गुरु का अधिकारी भी नहीं है वो। हाँ हाँ, गुरु में तो सब बहुत सारे गुण होना चाहिए ना, विवेक चूड़ामणि में हाँ सब दिया हुआ है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हम्म। अकाहतो शास्त्रोज्ञो। अधीत वेद वेदांत हाँ हाँ, प्रमाता इत्यादि सब जो किया है, वो गुरु होता है। सब जी वेद जी। वेदांत पढ़े होंगे, उसने सब किया होगा, उसको अनुभव हुआ होगा, ऐसा ही व्यक्ति गुरु होता है। और ये पुराना क्या जमाना है, और जमाना बदल गया, क्या करेंगे? तो ये ऐसा ही, ये तो क्या है कि प्रोफेशनल गुरु हो जाते हैं ये। एक जी पंडे के जी। बाद दूसरा पंडा गुरु हो गया, और हाँ वो हाँ पैसा हाँ। के लिए गुरु और दक्षिणा देना पड़ेगा उसको, ये हाँ, सब कर। और गुरु का बेटा भी गुरु हो जाता है, ठीक, अब वही तो समझता हूँ। गद्दी गद्दी मिल जाती है। ठीक है इसी महाराज, अंडरस्टूड। महाराज ये जो है वैष्णव धर्म में, ये इससे बिल्कुल अलग चीज है। वहां पे एक गद्दी पे उनका बेटा बैठता है, उसके बाद उनका बेटा बैठता है। ये है ही नहीं कि उनमें क्वालिफिकेशन है या नहीं है, दैट इज द चलो, हो जनरल। गई बात। चलो, हाँ, यही बात हो, भुवन दैट्स ऑल महाराज। प्रणाम भुवन महाराज। मित्तल आ गई। हाँ है तो सही, पर म्यूट है। दिलीप भाई अब मैं आगे आगे हाँ मैं हूँ आ गए, चलो। महाराज, मैं हूँ, मगर मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी अच्छा, घर। आफ्टरवर्ड विल डू आफ्टरवर्ड, ठीक है, बाद में इन द इन्फो। चलो अच्छा। यस। देवाशीष। प्रणाम महाराज। महाराज जी, इसमें से दो क्वेश्चन निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन में था द वेस्टर्नर्स आर द चिल्ड्रन ऑफ ग्रेट हीरो विरोचना, देयर पावर्स मेक्स 5 एलिमेंट्स। ये भी हो गया, आपने बताया। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गया। दो तीन मैं क्वेश्चन हो जाने वाली हूँ, ये था। तो मैं थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। ओके, थैंक यू। ओके जी, सी यू आपको जी, तो बाय। थोड़ा म्यूट करो। यस यस यस। हाँ, भुवन जी, हाँ ठीक है, हो गया हो थर्ड गया। third question है, do you think that the link of sympathy and regard between both the nations, USA and India, has grown since Swamiji preached Vedanta in the West? Maharaj ji, can you hear me, Maharaj ji? यस यस, इसमें इज देयर एनी डाउट? हाँ, ये There तो are so many centers, Ramakrishna Mission centers are there. नहीं, So many, sympathy, the whole about 1,000 Hindu denominations are there in USA. And Hinduism के पीछे कुछ तो वैष्णव हैं, कुछ के बेसिस के अंदर वेदांत भी रहता है। So नहीं ये तो आज के जमाने में तो दोनों मिक्स हो गए हैं। महाराज जी, ये बात नहीं है। मेरा क्वेश्चन अलग है। मेरा क्वेश्चन है महाराज जी कि ये जो सिंपैथी एंड रिगार्ड अमेरिकन का है हमारा इंडिया के ऊपर, इसी से हमें बहुत हेल्प, माने मटेरियलिस्टिक हेल्प मिलेगा और ये सब मिलेगा। दैट वाज द नोशन स्वामी जी इज सेइंग दैट गिव एंड टेक। सो बट दैट इज एक्चुअली नॉट हैपनिंग, इट इज ओनली द पॉलिटिक्स व्हिच इज हैपनिंग। नहीं, No, 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 टेक्नोलॉजी no. It ट्रांसफर हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हो रहा है। नो म्यूचुअल is सिंपैथी। 100 years में all the concepts have changed. यस यस हो रहा है। All यस concepts have changed. यस Whatever यस technology you can buy technology. Now it is not a question of you give and Nabi give spirituality and you give no. It is your technology, you purchase technology and you get. यस Now यस things have completely changed. Those things from the earlier. Now it यस is all business. यस अभी तो इंडिपेंडेंट हो रहा है। हाँ, सब अपने ढंग से करेंगे। हम्म। यहाँ पे वो वहाँ के अमेरिकन जो है, अमेरिकन फर्म आगे अपनी ब्रांच खोल रही है, दिल्ली में, बम्बई में अपनी ब्रांच कर रही है, उनको ही पैसा हाँ, कमाना है, वो सब कर रहा है। टेक्नोलॉजी आ रही है, सब तरह की टेक्नोलॉजी है। हाँ, जी स्पिरिचुअल एक्सचेंज नहीं हुआ है। Right, absolutely. No, now those things have gone. I mean, those concept is Swamiji's concept हाँ has changed. हाँ हाँ। Now it is commercialization का concept आ गया। ओके।
अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जाता हूँ महाराज जी। पेज नंबर 468 चैप्टर 2 में है, one's destiny is in one's own hand. The guru only makes this much understood. Through the power of the seed itself, the tree grows. The air and the water are only weights. So what is meant by the guru only makes this much understood? What is the role of the guru in spiritual life? माने देखो, गुरु रोल का गुरु जो है ना, उसमें दो प्रकार के मेजर डिफरेंट टाइप के गुरु होते हैं। एक तो है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। जी अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह समझ लो। नाउ दिस क्वेश्चन नेवर अराइज। दीक्षा गुरु, so he will give you mantra. So this is very important. This is the role of guru, to give the mantra. मंत्र दीक्षा देके उसके बाद बताएंगे ऐसे ऐसे जप करो, ये करो, वो करो। So for the rest of your life, a spiritual direction has been given. Second is शिक्षा गुरु। क्या देवाशीष? yes yeah महाराज जी सुन Second रहा हूँ। is शिक्षा गुरु. What is the role of शिक्षा guru? That you said, tell us. I have already told Diksha Guru. yes महाराज जी। And this, what is every week we are having Shiksha Guru and Shiksha Shishya. yes महाराज जी, Zoom मीटिंग में जो हो रहा है। हाँ So your question is answered. yes महाराज जी, yes sir, yes it is answered. Now I go to the next one, question number 5, for page 470. I have considered the matter most carefully and come to the consideration that those who profess and talk of religion nowadays in the country, the majority are full of morbidity and cracked brain and fanatic. So मेरा question है, why Swamiji is thinking that those who profess and talk of religion nowadays in the country, the majority are full of morbidity, cracked brain और fanatic? ये क्यों बोल रहे हैं? अरे एक सवा सौ साल पहले की बात है। 100 years ago, why are you having a relevance here? No relevance of this question. Okay. Done. Okay. Understood. The next question है page 470 and 471 also. दोनों में बताएं कि without development of abundance of rajas, you have hopes neither in this world nor in the next. The whole country is developed in intense tamas, and naturally there is servitude in this life and hell in the next. So Swami says, do you think that there is any other means of achieving progress except through rajas? दूसरा जगह में भी फिर बताया उन्होंने for. So my question is, what kind of rajas or work Swamiji is talking about? All type of rajas, agriculture rajas, army का rajas, football का rajas, cricket का rajas. See, India earlier so in such a bad shape. China conquered, took something. Then we had wars, and then they understood that this will not do. So complete change, rajas. For 100 years after independence, rajas has been going on. This is what is going on. Even now we want in every field. साइंटिफिक फील्ड के अंदर रजस की जरूरत है, एग्रीकल्चर फील्ड में रजस जरूरत है, आर्मी में रजस की जरूरत है, सब में डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट। महाराज जी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए होता है कि हम जीवन मुक्ति विवेक में पढ़ते हैं कि वासना त्याग, मनोलय। अरे छोड़ो, आप मत समझिए कि आप अधिकारी हो उससे। एवरीवन, हम सब समझते हैं कि हम अधिकारी हैं। इसीलिए तो एक बार हम जीवन मुक्ति विवेक भी कर रहे हैं, इधर विवेकानंद भी कर रहे हैं। विवेकानंद रजत की बात कर रहे हैं। ये तो रजस, बिना रजस के आप समझ नहीं सकते कि अभ्युदय गुण क्या है। महाराज जी इस रजस में अगर थोड़ा सा सात्विक भाव नहीं रहेगा तो रजस बेकार हो जाता है, क्योंकि हम दूसरे देखो स्वामी जी जो कह रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उस समय की बात। अच्छा ठीक है महाराज, उस समय की बात है। स्वामी जी वहां पे सात्विक भाव की नहीं बात कर रहे हैं। उस समय देख रहे थे सारा भारत जो है वो तमोगुण से तमोगुण से जी महाराज जी। साधक के लिए
उसको ये ध्यान रखना है, पहली बात कि वो तमोगुण में नहीं जा, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि वो सत्व गुण को धीरे धीरे विकसित करे। सीधी जी महाराज जी। ओके महाराज जी, ऑल क्वेश्चंस हो गया। अभी लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 8, 475, व्हाई द रिलीजन ऑफ भगवान बुद्धा वाज डिस्ट्रक्टिव? बिकॉज, उसको जरा पढ़ो तो, तुम पूरा पोर्शन पढ़ो। 475, पेज थोड़ा 470, यहाँ बुद्ध की बात कही। ये लास्ट में है 475 में। मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना चालू था। इन हाँ, ऑल पढ़ो पढ़ो, हाँ। In all ages and times, progress has been effected by the constructive process. That is, by giving a new mold to old methods and customs. Every religious preacher in India during the past ages worked in that line. Only the religion of Bhagwan Buddha was destructive. Hence, that religion has been extirpated from India. हाँ, देख, उस जमाने में क्या था, एक कर्मकांड और पंडों का बहुत भयानक इफेक्ट, और यज्ञ हुआ कर, और यज्ञ में पशु बलियां हुआ करती थी। तो वो भयानक सिचुएशन थी उस जमाने। उसके उद्धार के लिए भगवान बुद्ध आए। तो भगवान बुद्ध से कहा गया कि अच्छा, यज्ञ करना चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि यज्ञ करना चाहिए क्या? तो फिर नहीं करना चाहिए, मैंने कहा है कि नहीं करना चाहिए। वो कोई जवाब नहीं देते थे। उद्देश्य उनका ये था कि इस चक्कर में मत पड़ो, वाद विवाद में मत पड़ो। तो इस दृष्टि से उन्होंने जो उस जमाने का कर्मकांड जो बहुत फैला हुआ था, उसका डिस्ट्रॉय कर। अब कर्मकांड सारा डिस्ट्रॉय हो गया, फिलॉसफी दे दिया, लेकिन लोग ध्यान के लिए प्रवण नहीं थे। सब लोग अचानक तो ध्यान नहीं कर सकते। इसके लिए स्वामी जी कह रहे हैं कि वो उसमें डिस्ट्रक्टिव थे, उन्होंने निगेटिव ज्यादा किया है, पॉजिटिव कम किया है, ये बात। जी महाराज जी। और महाराज महाराज ये जो बुद्ध के टाइम पे सारे को सन्यासी बना देते थे, और उनको कुछ कैपेबिलिटी नहीं था। तो और फिर वामाचार भी बहुत आ गया था। हाँ, एग्जैक्टली, उनको तमस आ गया था। दैट वाज द डिस्ट्रक्शन। वही तो गोस्वामी जी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सन्यास को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया, बहुत इम्पोर्टेंट दिया था, और ये नहीं था, उनका अधिकारी नहीं था। महाराज जी, एक चीज तो उन्होंने सो कंपैशन के चलते पशु बलि भी बंद हो गया था ना। दैट जितना एक छात्र शिशु के लिए अपने प्राण दे रहे थे, मतलब है कि उन्हें कंपैशनेट थे, और पशु बलि तो बंद किया थे। तो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तो कंस्ट्रक्टिव है। यहाँ पे काम चालू हो गया, यहाँ पे अब बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि भगवान बुद्धा wanted to lay his life for saving a छाग शिशु, मतलब है कि बेबी गोट। तो ये तो जो पशु बलि का जो है वो रद्द हो गया था ऑलमोस्ट भगवान बुद्धा। तो ये तो कंस्ट्रक्टिव ही हो गया ना। नहीं, पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव हुआ, यानी नेगेटिव किसी काम को नहीं कर, हिंसा मत करो, ये नेगेटिव है। अच्छा, झूठ मत बोलो, ये नेगेटिव हुआ। अच्छा, ओके। चोरी मत करो, in that way is negative way, when you speak, that is called negative. Thank you महाराज जी, thank you महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। I'm ready now. Okay. हाँ जी। महाराज, मेरा पहला क्वेश्चन है पेज 448, सेकेंड पैराग्राफ। Nag Mahashay's renunciation can be compared to that of monks. Can you elaborate the significance of his householder status in Sri Ramakrishna's Leela? But where is Nag Mahasaya is not coming in this picture? नहीं, कहाँ है नाम, क्या है क्वेश्चन, क्या है? बेटर रीड। ये तो आ नहीं रहा है नाग महाशय का ये टॉपिक, ये आर्टिकल में तो है नहीं। एक नाग उनके
Passage, read the passage and give the question. ओके उनके शिष्य थे ना शरद चंद्र चक्रवर्ती, नाग महाशय से एक्वेंटेंस था, इसलिए पूछ रहे थे। नाग हाँ तो हाँ, आर्टिकल तो में you नाग see, महाशय नाग महाशय की जीवनी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, you see, you बहुत will have सुंदर to जीवनी read है the बाबा। life of Nag Mahasaya. हाँ, He was an ideal householder. बाप रे, आई देख। He wanted to become a sannyasi. श्री रामकृष्ण ने कहा नहीं, you remain as a householder. और Yes. ऐसा Correct. हाउसहोल्डर देखा नहीं, इतनी विनम्रता, अहंकार बिल्कुल था नहीं, और त्याग, सब कुछ दे देते थे अपने पास, जो कुछ कोई भी जाएगा उससे जो कुछ मांगेगा वो दे देंगे। ऐसे महान व्यक्ति थे। उसको उनको जीवनी को बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ो, ये बहुत इम्पोर्टेंट। पढ़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बिना तुमको नहीं समझ में आए। Highest ideal of householder. to give दीक्षा और संन्यास वो दीक्षा यानी देते थे। गृहस्थ का उच्चतम आदर्श त्याग का उच्चतम आदर्श। हाँ जी इनिशिएशन भी देते थे, दीक्षा भी देते थे। सेकंड क्वेश्चन, पेज 449। तो इसमें लिखा है द डिसाइपल वाज एट द टाइम अ स्टॉन्च ऑर्थोडॉक्स मैन इन हिज वेज एंड अ वेदांतिन। सो ये डिसाइपल के बारे में लिखा है। ऑल ऑर्थोडॉक्सी, इज इट बैड और नॉट? अब ये बताओ व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स? ऑर्थोडॉक्सी माने पुराने, इवन सनातन विचार, जैसे कि हमें सिर पे चुन्नी ढकना है मंदिर में, इसको ऑर्थोडॉक्सी कह सकते हैं, या फिर दाएं हाथ से ऐसे करना है, छुआछूत होती है सब। हाँ, ऐसा है कि ऑल ऑर्थोडॉक्सी इज नॉट बैड। कुछ ऑर्थोडॉक्सी रहना चाहिए, एक डेली रूटीन बना लो और उसको फॉलो करो। ये ऑर्थोडॉक्सी का ये पोर्शन इम्पोर्टेंट। हाँ जी करो तुम अपना काम करो, हम देख लेंगे, चलने दो, हम क्या करेंगे। अच्छा जी। अरे वेदांत का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया, कोई नियम कानून नहीं मानना, ये वेदांत का अर्थ नहीं है। अब नियमित रूप से आप जो कुछ करते हो, छोटा मोटा काम करोगे। हाँ जी। Does one's 100% orthodox यानी ऑर्थोडॉक्सी यानी क्रिया कर्म कांड, क्रिया अनुष्ठान जो है ये इतना ज्यादा होता है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा वो ज्यादा रिजिडिटी आ जाता है ना। तो कहाँ जाए महाराज, बाद में वो सिस्टर निवेदिता के ग्लास से। एक मिनट ठहरो। अच्छा, कितनी देर चल होगा तुम्हारा ये? चलेगा आधा घंटा। एक मिनट ठहरो। हाँ चल। महाराज, बाद में इसी में आता है ना, सिस्टर निवेदिता के झूठे ग्लास से स्वामी जी कहते उनको पानी पीने के लिए। शरद अच्छा। जी को। हाँ। तो ये सब छुआछूत तो ये बहुत जैसे है ना, ये छोटी मोटी चीजों को इतना पकड़ के रखना, ये ठीक। इम्पोर्टेंट। वो पहले समझते थे कि बाएं हाथ से ग्लास का पानी पीऊं या दाएं हाथ से ग्लास का पानी पीऊं, ये भी इसी के ऑर्थोडॉक्स, ऊपर झगड़ा कर रहे हैं। हाँ। इसी को ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ठीक चलो है। तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न पेज 451 से है। The disciple contemplated Swamiji's tears with steadfast gaze. So, does such contemplation on our Guru help us in our meditation? वो जब तक हमको देहात्म बोध, बॉडी कॉन्शियस रहेगा ना, तब तक वो उसको कॉन्टेम्पलेशन करना है। तो इष्ट को और इष्ट का चिंतन जो है, ठाकुर का रूप का ध्यान करना, ये रूप ध्यान पहले होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है गुण ध्यान, और उसके बाद में है स्वरूप ध्यान। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में ओनली इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन बाद में नहीं है इम्पोर्टेंट, बाद में नहीं करना है।
मैंने तो अच्छा, सारा जीवन जो है ठाकुर का रूप का ही ध्यान कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं समझ में आता है कि ठाकुर जीवंत है कि नहीं है, उनके सद्गुणों को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो ये नहीं करना। तो ये हाँ जी, रूप ध्यान शुरू शुरू में है, रूप ध्यान, गुण ध्यान, और उसके बाद में स्वरूप ध्यान। अल्टीमेटली ठाकुर जो है वो सच्चिदानंद है। और ये स्वामी विवेकानंद का रूप जो देख रहा है वो, तो स्वामी विवेकानंद भी सच्चिदानंद स्वरूप ही है। अल्टीमेटली वहां तक पहुंचना शुरू शुरू में आवश्यक हो सकता है, लेकिन बाद में नहीं। ये कोई बात नहीं, तो लेके खुद ले लो। हमें कैसे मालूम होगा कि अभी ये हमारा शुरू है कि बाद है? ये कैसे मालूम होगा? जो खुद ही हो जाता है, व्यक्ति को अपने आप हो जाता है, खुद को लगने लगता है वो, उसको उसका रूप जो उतना अच्छा नहीं लगता, वो रूप के अच्छा, पकड़े नहीं रहना पड़ता है, अपने आप को उसको क्वालिटीज में माना चला जाए। ठीक है। एंड so question number 4, page 453, 6th paragraph. Swamiji's heart was identified with the big I or Brahman. That is why he felt so deeply for the suffering humanity. Does such deep love only come through Advaitic realization? It can also come by Dvaita realization, भक्ति के द्वारा भी हो सकता है, उसमें क्या, यानी जो अपने कृष्ण को सब में देखेगा, हाँ जी, यानी हाँ जी, यानी जो भक्त है वो भी जो है वो भक्ति करते 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 सब जगह कृष्ण को देखने लग जाता है। हाँ जी, अब वो पहवारी बाबा में भी है, पहवारी बाबा जो किसको देख रहे थे उसके अंदर देख उसको, अब जो भी होता है जानवर में भी भगवान दिखने लग जाता है। तो जो अपना भक्ति का भाव जो है, जो इष्ट है अपना, वो इष्ट है सर्वत्र दिखाई देने लग जाएगा, और तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप हो जाए। हाँ जी. इज इट क्लियर? Yes, Maharaj. Yes. So now, page 457, Swamiji asked if the disciple has got the Kathopanishad by heart. Is such memorization still important when we have all the scriptures readily available all the time? Does memorization help in Manan and Nidhi Dhyasan? अरे उसको मेमोराइज करो ना, मन बहुत अच्छा लगेगा। यानी है जितना भी है, गीता तो है, गीता मेमोराइज करना चाहिए। कहते गीता तो हमारे पास है, क्यों मेमोराइज करेंगे? हाँ हाँ, कर रही हूँ मैं, वो तो ऑलरेडी मैं कई बार क्यों क्यों, वो तो किताब में, किताब गीता की तो पॉकेट में ही रहती है, क्या जरूरत है याद मेमोराइज करने की? वो अपना बनाने के लिए उन श्लोकों हाँ, को तो यही लिव बात हुई, इसी में भी है। और कठोपनिषद करो ना, कठोपनिषद बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा लगता है कि बस हमने तो किया था इसको, अभी भी हमको याद है, वो हम तो गाते थे इसको, तो हम लोग तो चैंटिंग करते हैं, उसको गाते हैं, तो उसको करने से तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीजें गीता और कठोपनिषद और भी जितनी चीजें हैं, इनको मेमोराइज करना, ये और स्टडी से दोनों से एक भिन्न चीज है, उसको कंफ्यूज मत। हाँ जी, इट हमने हैज गीता नथिंग टू के डू विद स्टडी, हाँ जी महाराज, दे गीता हम हैव सुन, देयर ओन वैल्यू। हाँ जी, और ध्वनि भी सुन बढ़िया श्लोक है। हम ट्रैवल करते हुए सिर्फ गीता ही सुन रहे हैं आजकल। वो गाड़ी में ऑडियो गीता का चैंटिंग और मीनिंग साथ में चलता है। नहीं, वो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं तुम्हारा जो खुद जो है, आजकल तो बहुत सारी ऑडियो हो गई हैं, वो भी सब हो गई हैं। पॉइंट इज कि खुद आप मुखस्त करो ना, उसमें अपने को अंदर रहेगा तो अच्छा है। हाँ? हाँ जी, हाँ, जैसे मामेकम शरणम ब्रज, लास्ट श्लोक है 18 चैप्टर का, मैं थोड़ा सा एक याद। श्लोक की बात नहीं कर रहा हूँ, एक श्लोक की बात नहीं हाँ, कर रहा हूँ, स्थित प्रज्ञ दर्शन पूरा याद करो। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक। Page 459, there will not even arise the idea of gender in one who is practicing complete brahmacharya, correct? Practically, is it a proper brahmacharya sadhana for women to consider themselves in mothers to all humans? आपने पहले भी बताया। बात हुई थी क्या उसके ऊपर कभी? Not the word brahmacharya, but in उसी any ऐसा है कि पुरुषों को बताया जाता है कि सभी नारियों में माता को देख, दैट इज बीइंग टोल्ड।
Now, what the women should do, I can't say. You people have to decide. तो इसका कॉन्ट्ररी तो यही हुआ कि वी शुड कंसिडर आवरसेल्व्स एज मदर्स। मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग तो यही बना ना। All women should consider themselves as mothers, is it? हाँ जी। Okay, I don't know. Nowhere is been said that. You people have to decide what you want to do. Mother. So what do you think, Nivedita ji? What do you suggest? Mother. Okay. Always. I know of women younger than me who consider them as my mother. मेरे से उम्र में 10 साल छोटी है, लेकिन अपने को माँ समझती है। यह स्वाभाविक है। For women to consider themselves as mother is natural. Natural. It can be very useful. हाँ जी, हाँ जी। Bengal Maharaji, fathers often, they address their daughters as mother. माँ बोलते हैं तो ठीक है। आइए दिलीप भाई। जी प्रणाम महाराज। दिलीप भाई। महाराज जी, first question, page number 458. We are undone by our vain quest after reality, while, oh B, you are indeed blessed with success. Please explain the meaning of this sentence, please. क्या है फिर से बोलो तो। एक मिनट जी, ये पेज 458 पे संस्कृत में लिखा हुआ है, वह तत्वान्वय सात हता मधुकर खलु कृति। एक मिनट, हमारा ये है जरा इसको। अच्छा एक मिनट। वो मेरे ख्याल में राजा दुष्यंत का था हमारा। वाला नहीं, ये he then asked the disciple to send this verse to Nagmasai. वो शकुंतला को जो और दुष्यंत जो था, एग्जैक्टली वो है ये। वो वाला क्या है, क्या समझ में नहीं, क्या है तुम्हारा प्रश्न, क्या है? महाराज जी, ये सेंटेंस मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप समझाएं। We are undone by our vain quest after reality, while oh B, you are indeed blessed with success. तो ये क्या बताना चाहते हैं? बी यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी वो क्या है कि वो तो कविता की भाव है कि मधुमक्खी, तुमने शकुंतला के ओंठों को छुआ है, चुंबन किया है, तुम धन्य हो। अच्छा, ये कविता की बात है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, किस संदर्भ में कह रहे हैं ये देखो तो। हाँ, नीचे लिखा हुआ है, he then asked the disciple to send these words to Nagmasai. Afterwards, finding it rather inconvenient to talk to the disciple in the crowd, he called him and Swami Turyananda to a small room to the west, and addressing himself to the disciple, began to recite these words from the Vivek Chudamani. Oh wise one, fear not. है कि ये You have not to perish. तत्व ज्ञान के बदले, उसको पूरा के तत्व ज्ञान के बदले भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है। वो जो मधुमक्खी जो है ना, वो भगवान से वो भक्ति कर रही है, वो भगवान से मधुमक्खी यानी भगवान की भक्ति जो है वो तत्व ज्ञान से श्रेष्ठ है। मैं तो ये समझा हूँ। मेरे ख्याल में महाराज जी यहाँ पे वो जो मधुमक्खी है उसको वो नाग महाशय की तरह मान रहे हैं कि उन्होंने ठाकुर को कितनी आसानी से पा लिया है, जबकि बाकी हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। बराबर। भक्ति के द्वारा उन्होंने ठाकुर के साथ एकात्मता कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ एकात्म भाव के बारे में बताया गया है। भक्ति के द्वारा भगवान के साथ में निकट हो जाना, निकटता प्राप्ति करना। जी जी बिल्कुल। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 459, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नोवेयर इन द वर्ल्ड
is to be found another nation like the American, so generous, broad-minded, hospitable, and so sincerely eager to accept new ideas. Further, the complete, महाराज ये पूरा पैराग्राफ ही है तो पढ़ने का वो है. Further, the complete paragraph to read. Maharaj ji, how Swamiji was so much impressed with the Americans. What Americans are not covered by Maya, and which is ultimately bad. अच्छा, ये वो हम जो बातचीत कर रहे हैं, इज इट नॉट माया? नहीं महाराज जी, मेरा सवाल ये नहीं है. मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, तुम्हारा सवाल ये है नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है, तुम यहाँ पे माया को क्यों ला रहे हो? हम जो बातचीत कर रहे हैं ये भी माया ही है, और वो जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी माया ही है. यहाँ पे माया का प्रश्न क्यों उठा रहे हो? यहाँ तो प्रश्न आएगी नहीं, यहाँ नहीं आएगा माया का प्रश्न. जी महाराज जी, ये तुम्हारा प्रश्न ही जो है इररिलेवेंट. अगर क्योंकि 5 क्वालिटीज है उधर. विद्या माया है या माया अभी तो 5 क्वालिटीज दिया है सुनो, उसी यहाँ मत आर्टिकल जाओ, में. माया का प्रश्न नहीं उठता है यहाँ. महाराज 5 क्वालिटीज है अमेरिकन की, वहां दिया हुआ है सेंटेंस में. हाँ, तो महाराज जी मेरा जितनी भी क्वालिटीज है Sincere. दिलीप भाई, ये सब माया की क्वालिटीज है, माया में ही है. जी इतना डेवलपमेंट हो रहा है, सब माया में हो रहा है. भारत में भी डेवलपमेंट माया में हो रहा है. हम जो बातचीत कर रहे हैं ये माया में हो रही है. ये माया को क्यों लाते हो यहाँ पे? ओके. अब महाराज जी, अब मेरा इसके अंदर एक सवाल ये है कि ये जो 3 चैप्टर्स पढ़े गए हैं, और तीनों चैप्टर पढ़ने के बाद जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि हमारी गरीबी, हमारी बैकवर्डनेस और अमेरिका की प्रोस्पेरिटी, ये देखने के बाद स्वामी जी ये चाहते थे कि वहाँ की जो प्रोस्पेरिटी है वो हमारे हिंदुस्तान में आना चाहिए, ताकि भूखमरी और ये सब बंद हो जाए. That was the main purpose behind it. करेक्ट. Am I correct? हाँ बिल्कुल करेक्ट. Right. करेक्ट. अच्छा, और अब इसके अंदर मेरा सवाल महाराज जी, अब इसके अंदर मेरा सवाल जो आज की तारीख में आके खड़ा हो गया है कि उस समय की स्थिति देख के स्वामी जी ने ये बिल्कुल रियलाइज किया और ये बताया. पर आज जो हमारे हिंदुस्तान की थोड़ी बहुत जो प्रोस्पेरिटी आई है, ये प्रोस्पेरिटी हमको बर्बादी की ओर ही ले गई है और ले जा हाँ रही है. वो अरे देखो देखो, लाखों लोग पहले गरीब में भूखमरी से मरते थे. हाँ हाँ, अब वो तो नहीं मर रहे हैं ना, पहली बात. अब क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है. तुम जो बोल रहे हो वही बात कर रहा हूँ. जी. पहले वहां पे 40 करोड़ लोग रहते थे, यहाँ पे अब 240 करोड़ हो गए हैं. ये भी तो भूखे मरेंगे. तो क्या करोगे? माया के राज्य में ये सब होगा, बैठो रहो, कुछ मत करो. फिर देखो, गरीब को हम रोटी खिलाएंगे तो अरे क्या फायदा खिलाने से, वो तो कल फिर भूखा हो जाएगा. तो मत खिलाओ. यानी आदमी, किसी भी गरीब आदमी को तुम धनवान थोड़ी बना सकते. वो तो जैसा कि वैसा ही रहेगा, कुछ न कुछ लगा ही रहेगा उस. ये तो संसार है, ये माया का राज्य है, इसमें गरीबी और वो अच्छा बुरा ये संसार में लगा ही रहे. जो हमसे हो सकता है, जो अच्छा है, जो खाए, गरीब आया आदमी आया है, वो माया के राज्य में है, फिर भी एक रोटी खिला दो बाबा उसको, कल फिर भूखा लगेगा, फिर देखा जाए कल की बात क्या की जाए. तो वो पहले भारत में सबको वो खाने को नहीं मिलता था, अकाल होते थे. उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो कम से कम वो खत्म तो हुआ. अब कुछ दूसरी भी तकलीफ आएगी, तो माया के राज्य में तो ये होता ही रहे. तुम जो बोले हो, एंड दिस इज माया, माता है ही, ये होगी ही. महाराज जी, मेरा सवाल ये है इसके अंदर कंटिन्यूएशन में कि जो मटेरियलिस्ट प्रोस्पेरिटी जब बढ़ती है तो मनुष्य धर्म से अलग हटता है और वो माया के अंदर कूद के बर्बाद हो जाता है. जबकि हम गरीब थे महाराज जी, जबकि हम गरीब थे तो खाना नहीं मिलता था या कम खाते थे, पर ईश्वर के प्रति श्रद्धा बनी रही थी, जो कि ईश्वर के प्रति तमोगुण भरा हुआ था. तमोगुण था, कुछ नहीं करते थे, ध्यान जब साधना कुछ नहीं करते थे.
स्वामी जी जैसे सन्यासी, उन्होंने सन्यासी अपने शिष्यों को लगाया, जाओ हॉस्पिटल करो, रिलीफ वर्क करो, खाने को नहीं है लोगों को, सड़क पे पड़े हुए हैं बीमार, उनको ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करो, सेवाश्रम करो, ओके ये उन्होंने सन्यासियों को लगाया। हाँ, ये भी कहा। उसके बाद ब्रह्मानंद जी आए, उन्होंने कहा जाओ, तुमने बहुत सारे 2-4 साल तक तुमने भूखे पेट कुछ नहीं होगा। तुमने लोगों के सन्यासी को बोला, तुमने 2-4 साल खूब सेवा की है, अब किसी जाओ के जरा पास भी उत्तरकाशी जाके बैठ 2-4 अरे महीने एक थोड़ा मिनट, ध्यान एक जप करके। बामरी जी प्लीज। हाँ नहीं, सीधे ही बस तो पहुंच गया। हमने जी चुप अरे रहिए। बंद करो भावनी जी। नहीं, अंदर घुस जाना ना गली वाली टायरों के बैक बैक में। भामरी जी, अरे भामरी जी, आपका मोबाइल बंद बंद। म्यूट करो। हाँ जी जी हाँ तो दोनों चीजें आवश्यक। दोनों जी। चीज आवश्यक स्वामी जी है। ने देखा कि लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, उन्होंने हॉस्पिटल चलाया, वाराणसी सेवाश्रम चलाया। ब्रह्मानंद जी ने देखा कि साधु साधु लोग जो है ये ध्यान जप नहीं कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, सेवाई कर रहे हैं। तो 4-5 साल के बाद कहा चलो भाई जरा 6 महीने चले जाओ तो उत्तरकाशी जरा ध्यान जप करके। ओ बराबर। तो जी, दोनों जी, आवश्यक है दिलीप भाई, दोनों आवश्यक है। बराबर राइट। पर महाराज अरे जी भारत के उस हाँ, जमाने में भारत की दुर्दशा इतनी खराब थी कि बस। बराबर अमेरिका में करो, अब ध्यान जप करो तुम। हाँ बराबर जी महाराज जी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, page number 459, then declaring that if qualified preachers could be had, there was greater likelihood of the Vedanta work being permanently established in England than in America. ये particular sentence है महाराज जी। Vedanta Society was established in New York, America first. Then how Swamiji was so much speaking about England. Further, how Swamiji found English people nearer to Vedanta. भाई अब ये नहीं मालूम हमको, अब जमाना बिल्कुल चेंज बदल हो गया। वो जमाना बदल था। अमेरिका जो था ना, ये तो इंग्लैंड जो है ना, ये हम ये समझ सकते हैं, तुमने प्रश्न किया है उसको मैं विचार करके बता सकता हूँ कि अमेरिका जो था ना उसमें कल सोसाइटी जो है ना वो अमेरिका में बाद में डेवलप हुई है। जी इंग्लैंड जो है वो बहुत पुराना है, पहले से ही है। जी हाँ इंग्लैंड में कल्चर और सिविलाइजेशन पुरानी है। जी जी तो बिल्कुल सही। इसलिए उनमें मैच्योरिटी ज्यादा है, वो कोई बात को धीरे जल्दबाजी से नहीं लेते हैं, अगर एक बार लेते हैं तो पकड़ के रखते। अमेरिका अभी नया नया हुआ है, तो उसमें जो कुछ भी आ गया वो ले लिया, थोड़े दिन रखा फिर छोड़ दिया, लगाएगा इस पर करेगा, उसके बाद में धीरे 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 चीजें वहां पे एस्टेब्लिश होंगी। इसलिए अमेरिका में बहुत सारी सेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे हो रहे हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। अभी भी तो ऐसे ही है ये महाराज। डिफरेंस है अमेरिका और इंग्लैंड। ओके राइट जी। पर महाराज जी वेदांता हैज फ्लरिश्ड इन अमेरिका मोर देन द इंग्लैंड because of the Christianity prevailing in England more, Europe. अब भाई ये सब नहीं मालूम। Okay, Maharaj, now page number 460, first para. My question is, when there is prosperity, religion or Brahman goes away and a person involved in more and more in materialist world, how Swamiji says Western says sympathy and regards for us. Further, if we adopt their science and civilization, will we not go away from the religion Brahman? ये तो हो गया महाराज जी, डिस्कस कर लिया। हो गया। हाँ, now next 461, महाराज जी इसके अंदर मैंने करेक्शंस करा हुआ मेरा क्वेश्चन है। I will lay down my life to carry out this belief practically. If you believe in any other way of accomplishing the good of India, well, you may go on working your own way. If Swamiji was so much impressed of American prosperity, because that the progress of our nation, he wants the way of working in the American style. अरे वो सब जमाना बदल गया, अब सब अमेरिकन इंडियन साइड सब मिल गए हैं बाबा। अब कोई मतलब नहीं था। अब कोई मतलब नहीं है। Okay, now my next question 462. महाराज जी, from the conversation with cow protection, ये भी हो गया है।
Next, page number 466, question number 7. With that spread among the masses in plain language in central truths of science, philosophy, history, and geography. What is the central truth of science, philosophy, history, and philosophy? अरे अलग अलग, ये साइंस एक अलग है, पूरा डिपार्टमेंट है साइंस का, नहीं, एमएससी करना पड़ता है, साइंस है ये। फिलोसफी में तो सिर्फ फिलोसफी बीए में करो, नहीं, ये तो अलग अलग सेक्शन है। नहीं, सेंट्रल ट्रूथ्स क्या होती है? सेंट्रल नहीं। ट्रूथ से मतलब क्या होता है? एक ही है, तुम्हारा एक क्या में। मतलब साइंस का सेंट्रल? वो मेरे को वही मैं पूछ रहा था, इसमें लिखा हुआ नहीं है। नहीं कुछ नहीं, अरे तुम जैसा साइंस के बारे में समझते हो उसे समझो। तुम साइंस के बारे में कुछ समझते हो? हाँ जी, जो थोड़ा बहुत समझते हैं। नहीं नहीं कुछ तो समझते हो ना साइंस के हाँ, बारे में। समझते हैं। ओके, बस बस उसी को ले लो बस। थैंक यू महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज जी, पेज सबसे 467. God is the सभी only. चीज महाराज अरे एक बाबी, बात बोलूं? पूछ रहे हैं ना उसके बाद। हाँ, सभी साइंस भी चाहता है कि बहुत्व से एकत्व की ओर जाना, यस, वही ट्रुथ अरे है। भाई ये देखो यहाँ 4 चीजें स्वामी जी ने कही हैं। हम्म। अब वो उसके ऊपर हमको एनालिसिस करने से क्या होगा? हाँ, जी। ठीक। ओके तुम साइंस ले तो साइंस को ही लो, अच्छी तरह पढ़ो। फिलोसफी है उसकी फिलोसफी पढ़ो। हाँ महाराज जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 467, क्वेश्चन नंबर 8. God is the only dispenser of results. Leave it to him to do all that. What have you got to do with it? Don't look that way, but go on working. Maharaj ji, if result is to leave it to him, then why people work if results not in their hands? Maharaj ji, on page number 468, second line, Swamiji says, one's destiny is in one's hand. So Maharaj ji, there is a contradiction in the two sentences. हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। Yes. वो श्री कृष्ण को अर्जुन ने, भगवान ने श्री कृष्ण को क्या कहा था? अर्जुन को क्या कहा था? कर्म करो फल की चिंता मत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। करो, वहाँ फलेषु कदाचन। वो कर्म करो बिना फल के इच्छा। हाँ जी। और उसके बाद ये भी कहा था हाँ। कि यदि जीतवा व भोक्ष से महिम, जीतेगा तो तेरे को पृथ्वी का भोग मिलेगी। हाँ, तो ये भी कहा हाँ। तो मरेगा तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, ये भी कहा। जी। तो दोनों चीजें हैं कि नहीं? हाँ, दोनों। तो it is तो exactly- जो कर्म करोगे उसका कोई ना कोई फल होगा ही, लाभ होगा ही, लेकिन उसकी चिंता मत करो। ओके, बस ठीक हो गया। तो हाँ, लास्ट यानी कर्म करे जाओ पर उसकी रिजल्ट के बारे में मत सोचो। सोचो मत, मिलेगा तुमको। अब पर यहाँ पे लिखा है ये, गॉड इज द ओनली डिस्पेंसर ऑफ रिजल्ट, यानी वो ईश्वर देगा, कर्म हाँ, फल ईश्वर दाता है। देगा। पर कर्म करो। ओके, नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 468, क्वेश्चन नंबर 9. The way by which one realizes the self is the way which preaches to all, but the goal of all is the knowledge of the self, the realization of this self. To it all men, all beings have equal right. This is the view acceptable to all. Maharaj ji, when all beings have equal right, then only few gets self-realization. तो हाँ, सबको एवरीवन है, तुमको सबको ये अधिकार है कि करोड़पति बन सकते हो। तुमको किसी ने मना किया है कि ना करोड़पति बनने का तुमको सबको लक्ष्य है, तुम कर सकते हो, लेकिन करोड़ों में एक ही बनता है। क्यों दिलीप भाई, बताओ। महाराज जी बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, राइट। तो ये हालत है कि हम सब पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं, पर आखिर में किसी एक को ही मिलेगा, जरूरी नहीं सबको सबको। अब ये समझ में आ गया। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् इति भगवान ने क्या ना जी, लाखों मनुष्यों में कुछ सिद्ध करते हैं, लाखों में से भी एक होता है सिद्ध, एक होता है जी, तो भी करना है। हाँ बराबर जी महाराज। अच्छा, पेज नंबर 470, क्वेश्चन नंबर 10. As if he was the embodiment of knowledge, work, devotion, power of concentration and everything. Maharaj ji, please explain this line in detail. नहीं, श्री कृष्ण में ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग सभी है, ये बात। ओके, तो ये कृष्ण के नाम से चला
हेल्थ सेंटर। कृष्ण के लिए तो कहा है। ओके, श्री कृष्ण में ज्ञान भक्ति कर्म योग सभी। अभी राइट। ओके महाराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ एन अबंडेंस ऑफ रजस, you have hopes neither in this world nor in the next. The whole country is enveloped in tense tamas, and naturally the result is servitude in this life and hell in the next. Maharaj ji, Swami ji here speaks for rajas also. Rajas. Also Swami ji rebuke religion and tells us religion is morbid. ये दोनों बात यहाँ पे बताइए। मॉर्बिड धर्म भी जो है ना, धर्म भी जो है उसमें क्या हो गया, तमोगुणी धर्म हो गया। हाँ बिल्कुल, अफिनती है धर्म। तो फिर तो धर्म भी तमोगुण हो गया है। संसार में सभी तरफ तमोगुणी उसको भगाना चाहते हैं स्वामी। तो धर्म को क्या रजस से भगाएंगे? रजस और नहीं, डेफिनेटली लगा दिया ना स्वामी जी ने, कर्म में लगाया कि नहीं किया, सन्यासियों को कर्म में लगा दिया जी। नहीं तो थोड़ा सा घंटी बजा देते, सुबह शाम थोड़ा सा घंटी बजाते तो ये धर्म हो जाता है। धर्म की कहानियां पढ़ो ना, कैसे ग्रस्त हुए थे। युधिष्ठिर थे, धर्मराज थे। हाँ। तो ये क्या तमोगुणी थे? आज तक गोए तमोगुणी हो गए, युधिष्ठिर की बात ही नहीं करते। नहीं महाराज जी, इससे ये बहुत बड़ी चीज आपने बताई है। यानी इसका अर्थ ये है कि ये मंदिर जाना और ये करना, दैट इज ऑल, इट इज कवर्ड अंडर तमस, नॉट अंडर रजस। नहीं वो तो अपने मन को संतोष दे रहे हो, थोड़ा सा आगे तम कर लिया, बाकी जीवन जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान के नाम पे बैठे हुए जबकि माला हाथ में हर सो रहे हैं। देखे नहीं ऐसे कि नहीं कि कई बहुत दिखे होंगे तुमने। जी जी। हाथ में जबकि माला और सो रहे हैं, मालूम है कि नहीं? हाँ, या दूसरी बात, दुनिया की बातें कर रहे हो, हाथ के अंदर वो है। दिस इज महाराज जी वेरी कॉमन विद द वैष्णव धर्म की वो माला। तो मैंने कहा है कि वो तुम तमोगुण की बात, माला पढ़ते जाते और सामने वाले को गाली देते जाते। कोई वहां से स्वीपर निकला तो वो चिल्लाना लगता है। महाराज एक प्रश्न पूछो। महाराज जी अनम्यूट करिए। महाराज। हाँ जी महाराज, आपका ऑडियो वीडियो दोनों हाँ जी म्यूट हो गया जी। हाँ हाँ पूछिए ना, आप कहाँ गए? महाराज सुन रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। महाराज जी, जैसे मैं बेलूर मठ के पास रहती हूँ ना, तो कभी कभी मन में बहुत गिल्टी फील होती है कि घर में बैठ के जप कर रहे हो तो बेलूर मठ जाना ही चाहिए, तो इसमें द्वंद आ जाता है। इसके बारे में क्या करना है? इसमें तमोगुण रजोगुण की बात तो नहीं आ रही है? आ रही है महाराज। जैसे रजोगुण उठ के जाना है, वो नहीं करके बैठ के जप करना ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उस समय क्या करना? अच्छा जप होगा तो सात्विक हो जाएगा। अच्छा, तो मन में द्विधा नहीं आना चाहिए ना, मन में द्वंद नहीं आना चाहिए। तुम डिसाइड करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करना। तो धर्म के तो वेरियस लेवल्स। हाँ ठीक है, ओके। Maharaj ji, now next question. Maharaj ji, please tell us what is Purva Mimamsa and Uttara Mimamsa. कोई ना, पूर्व मीमांसा यानी कर्म कांड। कर्म कांड यानी इतने घड़ी से पानी से भगवान की मूर्ति की पूजा कर को धोना है, और इतना सबको साफ करना है। ये सब जिसे कहते हैं ना कर्म कांड। क्रिया कर्म जिसमें जाता है, पूजा अर्चना, ये सब कर्म कांड हो जाता है। और उत्तर मीमांसा जो है वो है ज्ञान का। विचार करना है, जगत मिथ्या है, विवेक वैराग्य करना है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इसका चिंतन। वेरी गुड वेरी गुड महाराज, वेरी जी। हाँ, now my next question is, in this age, as on the one hand people have to be intensely practical, so on the other hand they have to acquire deep spiritual knowledge. Maharaj ji, please explain the meaning of this intentionally practical. क्या हुआ, बोला क्या है? ये क्या है? पेज नंबर 474। फिर से पढ़ो। हाँ महाराज, मैं पढ़ रहा हूँ।
in this age, as on the one hand, people have to be intensely practical. So on the other hand, they have to acquire deep spiritual knowledge. इससे ऊपर नीचे पढ़ना है. हाँ, तो वो साधु को हॉस्पिटल चलाने की क्षमता होनी चाहिए. हॉस्पिटल चलाना दिलीप भाई तुम नहीं चला सकते, साधु लोग चलाते हैं, है ना. कितने प्रैक्टिकल है, इंटेंस कैपेसिटी. Yes. उसी के साथ डीप स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए. जूम मीटिंग करने की क्षमता होनी चाहिए, ध्यान करने की क्षमता होनी चाहिए, डीप स्पिरिचुअल नॉलेज भी होना चाहिए, और प्रैक्टिकलिटी संसार में भी होनी चाहिए. मल्टीपल वर्क होना चाहिए. मल्टीपल नहीं, एक ही चीज है, वो दोनों वर्क जगह एंड लगा. वर्शिप. यानी तुम्हारी कैपेसिटी जो है इंटेंस प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, मल्टीफोल्ड हो. हाँ, मल्टीफोल्ड. कैपेसिटी जो है आपकी डेवलप हुई है, इस कैपेसिटी को आप हॉस्पिटल चलाने में लगा सकते हो और उसको ध्यान करने में भी लगा सकते हो. ओके, लगा सकते नहीं, लगाना चाहिए वाली बात आएगी. नहीं, ये क्षमता है, यानी उसको क्षमता होनी चाहिए. ये आदर्श बताया. राइट. ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर 18 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशन? भाई ऐसा है कि ये मैंने 18 कभी मधुर पढ़ा भाव नहीं. है. ऐसा है कि पांच भाव तो है. शांत भाव जी, दास्य भाव, हाँ, वात्सल्य भाव, सख्य भाव और मधुर भाव. ये तो 5 प्रसिद्ध है. हाँ जी. ये मालूम है कि नहीं दिलीप भाई? हाँ, ये बराबर है, बिल्कुल मालूम है. ये हमारे प्रश्न में ये भाव आते हैं. हाँ, 5 है ना. भगवान श्री कृष्ण को बच्चा समझना, हाँ, श्री कृष्ण को सखा समझना, जी बिल्कुल. अपने को स्वयं को दास समझना, हाँ, और अपने को भगवान की दासी से वो अपने पत्नी समझना, मधुर भाव करना या शांत भाव करना. तो ये 5 भाव हुए भगवान. हाँ, ये इस प्रकार के और भी भाव हैं. ओके. अपत्य भाव यानी भगवान को पिता समझना. हाँ, वो तो नहीं है 6 में, 5 में नहीं. पिता समझना. और शत्रु भाव, रौद्र शत्रु भाव. तो कंस जो होता है भक्ति की थी, और शत्रु भाव से भक्ति की, वो तो है भागवत में है. उनको भी मुक्ति हो गया. वो तीनों उनको दोनों को दंड मिला के तो भगवान क्या हुआ था ना, को था जय विजय को श्राप मिला था. मुक्ति हो गई. पर महाराज विरोधी भक्ति कंस की कोई भक्ति थोड़ी थी. हाँ, थी. बार रिमेम्बर करते थे, बार याद करते थे, भगवान को भक्ति कर रहे थे. हाँ, जैसे तो ये विरोधी भाव भी हो सकता है. कंस, रावण, सब यही एग्जाम्पल है. रावण इस प्रकार से दिलीप भाई 18 भाव हो सकते हैं. तो महाराज जी, नहीं, ये बराबर है. ये नहीं, 18 नहीं जानना. मेरा पूछना का अर्थ ये है कि ये जैसे आप ये भाव बता रहे हो, इसका अर्थ ये हुआ कि इस संसार के अंदर हम जो जी रहे हैं, या हम जो काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ये सब कोई ना कोई भाव में ही कर रहे हैं. यही बात हो गई इसका, कि दुश्मनी का उससे हमको प्रश्न यहाँ पे ये है कि जो भी भाव से करे, भगवान से करे. ये भाव यहाँ पे महत्व, भगवान से जोड़ना है. संसार की बात नहीं है यहाँ पे. अच्छा, हर भाव को भगवान से जोड़ दे ना. हर भाव को भगवान से जोड़ना. 18 भाव. जी बराबर. जी महाराज जी, बस. प्रणाम महाराज. महाराज, लेकिन विरोधी भाव करना नहीं चाहिए, क्योंकि बैक डोर से क्यों एंट्री लेनी है? हमें तो सीधे फ्रंट डोर से लेनी चाहिए ना, भक्ति के मार्ग से लेनी चाहिए एंट्री. देखो कुछ लोग ऐसे थे जो बैक डोर एंट्री से भी फास्ट चले गए थे. और क्या. वो कहा था ना, जय विजय को कहा था. हाँ महाराज जी. हाँ, अगर तुम शत्रु भाव से रहोगे तो 3 जन्म में हो जाएगा. हाँ, वरना 14 जन्म लेने पड़ेंगे. तो by hatred he reached the goal. कंस जो है हेट करते ये हो गया. अच्छा, नेक्स्ट रीता विश्वास. Yes, Swami ji. Pranam Swami ji. Page 465.
Swamiji answers his own question. Well, say then, what's the sign of consciousness? And explains that where there is struggle, where there is rebellion, there is the sign of life, there consciousness is manifested. I'm not clear about consciousness as explained here. Kindly explain. You see, here Swamiji has equated life and consciousness. Isn't it? Yes. Wherever there is life, there is consciousness. This is what Swamiji has. Pran or Chetna. Pran or Chetna. That is what I was thinking. Accordingly, say consciousness. You know, consciousness. When you are asking a question, I am explaining that consciousness cannot be there without brain. Amoeba has no brain. Yes. But he has life. Yes. Can you say that there is consciousness? Yes. Swamiji will say, yes, there is consciousness, because if you touch it, we'll go away. Try to protect it. Struggle, correct. तो ants वगैरह भी जो है जिनमें ब्रेन नहीं है, सिर्फ नर्वस सिस्टम है, उनमें कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, बड़ा मुश्किल है. Yes. तो हियर इन लोगों को स्वामी जी ने कहा सर्वाइवल स्ट्रगल के जो है ना, सर्वाइवल के प्रेजेंट है, वहां पर कॉन्शियसनेस. So here Swamiji has equated consciousness with life. He says. My second question, page 465 to 466. Swamiji says, if you can think that infinite power, infinite knowledge, and indomitable energy lie within you, and if you can bring out that power, you also can become like me. How to think this way and how to bring out that power? To say, ऐसा है कि once you have to take it. First is चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. Yes. अहंकार चित्ता निनाहम. है ना? Yes. उसको रोज chant every day. That every day chant it, and every day think about it. Only mentally, verbally chanting नहीं. No. रोज Chant and think. वैराग्य शतकम को चिंत करो. चिदा मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ. रोज सोचो अपने आप. Forcefully सोचना. Second is No, मैं बोल रहा हूँ how to. First means is how to चिदानंद रूप चिंतन करो रोज सुबह. रोज करो every day. Yes. Second is read the complete works of Swami Vivekananda, thoughts of power, Shaktidai, Vichar, etc. every day. There is so many poor people. Swami ji ka life और Swami ji का पढ़ के महान बन गए. Isn't it? Yes. Swami ji, source of inspiration, has made so many people great, isn't? Is it a fact? Yes. Or not? Then this is the very clear method. Everything, great thing, everything is within you. Swamiji repeatedly tells all power is within you. So is it useless? No. About it and you'll get. Yes, correct. Swamiji, then I go to the third question. Page 466, last sentence. Here Swamiji says, only part of the sentence is, if you can, I say, make yourself one in speech and action. This is also said by Thakur, Monmukh ek karo. How to make thought, speech, action one? So first of all, control your speech. बोल जितना, as far as possible, speak less. ठीक है? Yes. Second, take some vows. Take some vow. Yes, Swamiji. I'll read Swami Vivekananda every day. I will get up early in the morning at this time. I'll do a little exercise. Whatever it is, you make some vows and fulfill. Yes. And fulfill it. Fulfill that. So this is thought and action. Action हुआ. Yes. अच्छा.
then if you speak something, Hmm. you do You can accordingly. do it. That you have you have और taught me ठाकुर का है ना, that lesson. ठाकुर ने बोला मैं झाऊतला जाऊंगा। हाँ, अब तो उनको टट्टी का तो हाजत नहीं है, फिर भी बोल दिया है मैंने, तो अपना गाड़ू लेके और चले गए उस तरफ। So if you are some carefully, you are carelessly, you have spoken something, you put it into action, practice it. Yeah, that is what I wanted to ask you. So Even these are something. the things. See, so many techniques are there. So when you speak, you act accordingly. Otherwise, don't. Gradually, your mind will start acting quietly, will become quiet. So many thoughts are going on. Don't convert them into speech. Yes. Yes. Yes, Swamiji. Okay. This is very important. My last question, page 467, second para. Swamiji says, what you have understood as true and good, just do that at once. What is the meaning? My understanding of what is true and good may not tally with another's understanding. How to find out what is really true and good? Now read the whole passage. Whatever one thinks is good, do it. Finish. It has nothing to do with someone else's understanding. Oh. Everyone has got his own understanding of. Understanding, yes, yes. Everyone has. We go on thinking, what is good? This is good or not good? Go on doing. Don't come to a conclusion of what is good, and don't do anything. Instead of that, no, that can. Don't do it accordingly. But finish. Because everyone's good will change. वो कैसा सोचेगा, मैं ऐसे करूंगी तो वो कैसा सोचेगा, ऐसा नहीं करना है। सारा जीवन ये करते रहते हैं, कुछ होता कुछ होता नहीं है. That is very correct. Yes, yes. Now I am very clear about this. Okay. Wait, today is clear, then again same thing. Practice. Your questions were all practical. Now that has to be put into practice. Into practice, yes. Yes, Swami. Thank you, Swamiji. Thank you. निवेदिता हो गया? हाँ जी महाराज, मेरा पहला प्रश्न तो हो गया महाराज। दूसरा प्रश्न पहला प्रश्न वो दूसरा है, why Swamiji had not preached about Thakur in West? We have discussed it. ये तो हो गया। अरे ठाकुर का नाम करते करते ठाकुर के प्रैक्टिस कुछ नहीं करेंगे। मैं यदि बोलूंगा वहां पे तो स्वामी जी मजाक उड़ाएंगे, स्वामी ठाकुर अमेरिका में करेंगे। आपने बोला ठाकुर himself is principal, not personality. ठाकुर he is only principles. कहीं पे है किसी principles? यही हमको बहुत अच्छा लगा। He is nothing but principles. There is no personality. Principle, not person. कैसा कृष्ण की पर्सनालिटी थी, राम की पर्सनालिटी थी, बुद्ध की पर्सनालिटी थी, और ठाकुर की तो पर्सनालिटी एक दाढ़ी है, दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बस बैठा हुआ है, झुका हुआ है, क्योंकि ठाकुर की पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी नहीं, ठीक। वो उन्होंने जानबूझ के इस अवतार में उन्होंने फिजिकल फॉर्म को कंप्लीटली रिजेक्ट और प्रिंसिपल्स को लिया सारे जीवन में उन्होंने, और हम उसको छोड़ के पर्सनालिटी लेना चाहते। फुलिश। और जो लोग लेते हैं वो कमरे में लगा देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, और प्रिंसिपल जानते ही नहीं है, उनको प्रैक्टिस करते नहीं है। अरे बाबा, उसके बदले तुम प्रिंसिपल जो ठाकुर ने बताया है सत्य बोलो, वो करो, वो सबको अपने जीवन में डालो ना। वो तो सब पहली बात ही क्या है, सदा सर्वदा नाम गुणगान करना है ना, नित्य नित्य विवेक करो, नित्य नित्य जिस प्रकार माँ शारदा चार को चीजें हो उसको करो, पूरा करो, तो एक सब करो, और क्या जरूरत है फिर। इसलिए स्वामी जी ने ठाकुर को नहीं कहा उनके प्रिंसिपल्स की बात। उसके बाद क्या होगा, जो लोग उनको ठाकुर की लाइफ पढ़ेंगे वो ऑटोमेटिकली उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
महाराज जी ये हिंदी में इन्होंने लिखा है, वे दर्शन और विज्ञान शास्त्रों पर बहुत ही अभिमान करते हैं। इसी कारण युक्ति, विचार, दर्शन और विज्ञान की सहायता से जब तक उनके ज्ञान का अहंकार न तोड़ा जाए तब तक किसी विषय की वहां प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क विचार से कुछ पता न लगने पर तत्व जानने के निमित्त सचमुच उत्सुक होकर जब वे मेरे पास आते थे तब मैं उनसे श्री रामकृष्ण की बात किया करता था। यदि पहले से ही मैं उनसे अवतारवाद का प्रसंग करता तो वे बोल उठते, तुम नई बात क्या सिखाते हो, हमारे प्रभु ईसा भी तो यही करते हैं। यहाँ पे यही पर तब ये स्वामी जी ने जो ये भी जवाब बहुत दिया, ऑटोमेटिकली क्लियरली जवाब दे दिया, हाँ वेरी क्लियर। जी। और महाराज जी माँ शारदा तो अवगुंठित कर होके आई थी, तो एक तरह से ठाकुर भी एक दूसरे किस्म की तरीके से अवगुंठित थे, उन्होंने अपने आप को प्रकाश नहीं दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन निवेदिता का क्या हुआ? तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन हो गया? बस हो गया महाराज। हाँ हो गया महाराज। तो पहला गुरुगिरी की बात हो गई। हाँ वो तो सुबीर ने पूछा था अभी। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा, अब लास्ट कौन बचा है? सतीश, तुम्हारे तो क्वेश्चन फटाफट पूछने हैं। सतीश पूछो। लेफ्ट महाराज जी। सतीश जी अनम्यूट है, अनम्यूट सतीश करना तो है। वहां गया ना रिट्रीट में। वो रिट्रीट में है। रिट्रीट में गया अच्छा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ Yes, में। left वो महाराज। he is not there महाराज। अब भामरी जी इज देयर, हाँ। व्हाई डिडंट गो टू Yes, चंडीगढ़? ब्राह्मणी जी पूछेंगे I am a क्वेश्चन। good listener महाराज। अच्छा, वेरी I can listen you। तो हो गया फिर जी। बंद करें। बस हो गया। हाँ जी। ओम ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। ठीक है सतीश। नहीं आया सतीश कहाँ गए? देखते हैं। आज, सतीश केवल आ गए 12-13 क्या? जने हैं, ज्यादा नहीं है संजय। 14 लोग ही हैं, 14 लोग। 14 टोटल 19 लोग आए थे महाराज।